Hello, my dear students. Myself Saroj Kumar Biswal from Obrain Commercewala. Today, we will understand what is final account. आज फाइनल अकाउंट विषय पे बुझेबी या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जदि भल से धरी पारिबो समस्त को लगे फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट बट आई विल मेक इट इजी. मात्र 7टा आइटम विषय आम आलोचना करदबा तापर फाइनल अकाउंट आराम से हो जिवो. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट is the end product of accounting. Final account होच पिले accounting रो end product मतलब सबा शेष रे ही तैयारी हुए. पिले पढ़ी थिबो तमे accounting cycle आमे फास्ट कोन कोली पिले जर्नल करो तापरे कौन कले लेजर तापरे ट्रायल बैलेंस तापरे फाइनल अकाउंट. सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट हम कले जर्नल देन लेजर देन ट्रायल बैलेंस देन फाइनल अकाउंट. सो अकाउंटिंग साइकिल एंड प्रोडक्ट होची फाइनल अकाउंट. it is an integral part of a business. What does it mean? Integral part of a business. Every business organization must prepare final account. That is why it is an integral part of a business. It is prepared by every business organization. Final account will be prepared only by business organization. It is prepared at the end of the year. केबे तैयारी हबो पिले वर्ष शेष रे. It is prepared to know profit, loss and financial position. Final account is prepared to know profit, loss and financial position. It is a set of financial statements. Final account is a set of financial statements. कौन trading account, profit and loss account and balance sheet. अच्छा आउ थरे देखि दवा. Final account is the end product of accounting. It is an integral part of a business. It is prepared by every business organization. It is prepared at the end of the year. It is prepared to know profit, loss and financial position. It is nothing but a set of financial statements like trading account, profit and loss account, then balance sheet. आमे फाइनल अकाउंट जेतले पहिले तयारी करिबा सेतरे ट्रेडिंग अकाउंट बनैबा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनैबा आउ बैलेंस शीट बनैबा. चला देखिबा ये ट्रेडिंग अकाउंट कोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोन आ बैलेंस शीट कोन तांको विषय रे बुझि जिबा. तापर 7टा आइटम कहि दे पिले हे जिवो. फर्स्ट देखिबा ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. It is prepared to know gross profit or gross loss. All the direct expenses are recorded on the debit side and direct incomes are on the credit side. Trading account ro debit side रे पकेबा direct expense, credit रे पकेबा direct income. The difference between these two sides will represent either gross profit or gross loss. यदि credit total मतलब income side टा debit side रो अधिका है गला एक्सपेंस साइड रो ग्रॉस प्रॉफिट बाहरिबो. जदि डेबिट टोटल टा क्रेडिट टोटल ठार अधिक आइगला ग्रॉस लॉस बाहरिबो. लेट अस रिकैप. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. इट इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. All the direct expenses are recorded on the debit side and all the direct incomes are recorded on the credit side. The difference between these two sides will represent either gross profit or gross loss. Same style profit and loss account देखो. Profit and loss account is a nominal account. It is prepared at the end of the year. It is prepared to know net profit or net loss. Trading account रे gross profit gross loss बाहरिबो. Profit and loss रे net profit और net loss बाहरिबो. All the indirect expenses are recorded on the debit side and all the indirect incomes are recorded on credit side. The difference between these two sides will represent either net profit
or net loss. Repeating, profit and loss account is a nominal account. It is prepared at the end of the year. It is prepared to know net profit or net loss. All the indirect expenses are recorded on the debit side and all the indirect incomes are recorded on the credit side. The difference between these two sides will represent either net profit or net loss. जदि क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइडटा डेबिट साइड ठार अधिका होगला नेट प्रॉफिट बाहर जदि डेबिट साइडटा क्रेडिट टोटल ठार अधिका होगला नेट लॉस बाहर देन we'll see balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet is a statement. It is not an account. Balance sheet simple is a statement. It is prepared at the end of the year. It is prepared to know the financial position of the business. It has two sides. The left hand side is called liability side and the right hand side is called asset side. According to dual aspect concept, I mean accounting equation, both sides must be equal because asset is equal to liability plus capital. Repeating, balance sheet is a statement. It is prepared at the end of the year. Why it is prepared? It is prepared to know the financial position of the business. It has two sides. The left hand side is called liability side and the right hand side is called asset side. According to dual aspect concept, means accounting equation, both sides of the balance sheet must be equal because asset is equal to liability plus capital. तो ट्रेडिंग अकाउंट विषय कहीदेली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विषय कहीदेली, बैलेंस शीट विषय कहीदेली. एबे जिबा से सातटा आइटम को, से सातटा आइटम को देखिदबा. देखुच प्ले 1 मिनट. आसीगला. फर्स्ट देखिए पिले assets. Asset का कहवा, anything which is owned and used by the business organization are called its assets. जो जिनस उपरे बिजनेस र ओनरशिप अछि एवं बिजनेस द्वारा यूज होछ. दीटा जिनस टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड. इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंड इट मस्ट बी यूज्ड बाय द बिजनेस. ताको हम कहवा asset. Anything which is owned and used by the business organization are called its assets, like land, machinery, building, furniture, goodwill, copyright, trademark, debtors, bills receivable. All these are called assets. Next item, liability. Any amount which is owed by the business organization. मतलब business organization टा हमरो जहाँ दबार अछि ताकू कहबा लाइबिलिटी. बिजनेस जो दब ना दीटा पार्टी अछंती, गोटे इंटरनल आ गोटे रहला एक्सटर्नल. सो लाइबिलिटी को हमें दी भाग रे डिवाइड कर दे परिबा, इंटरनल लाइबिलिटी आउ एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी रे के रहइबो? कैपिटल. मालिक जो पैसा देइची बिजनेस ताकू दबो. तुमको लागुथो बिजनेस जे तो मालिक से नो, देयर इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. बिजनेस अलगा, ओनर अलगा. बिजनेस चाहिए ओनर नार केस करिवो, ओनर चाहिए बिजनेस नार केस करि परिवो. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स बिजनेस एंड इट्स ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ए सेपरेट लीडिंग केस इज देयर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के रहला, क्रेडिटर जा पाखरे बाकी रॉ मटेरियल आनछे, एक्सटर्नल रहला ताकू पैसा दबा, बैंक रु लोन करछो, बैंक टा हमरो बाहर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरेस्ट लोन, बिल्स पेबल, ऑल दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी को आमे दी भाग रे डिवाइड कर दवा पले. गोटे हला इंटरनल लाइबिलिटी, सेतरा आसीबो कैपिटल आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक को पैसा दिया हबो. एक्सटर्नल लाइबिलिटी आम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर जे रहले जाको हम पैसा दबा. क्रेडिटर, लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्स पेबल. एसेट्स जानलो पिले, लाइबिलिटी जानलो. एथर देखिबा कैपिटल. कैपिटल का कहवा, एनी कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस. मालिक जेतेबेले कैश दो बा किछि जिंस दो, मालिक रे कोठी जागा थिला लैंड दे देला बिजनेस को, लैंड हेगला बिजनेस रे एसेट. मालिक रे किछि फर्नीचर थिला दे देला बिजनेस रे एसेट हेगला. सो एनी कैश or kind which is invested by the owner in his business is called capital of the business. Direct expense का कहबा, the expenses which are incurred before production are called direct expense and the expenses which are incurred after production
इज कॉल्ड आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस एई जगह को मार्क कर पिले एई दहला एटा तमरो प्रोडक्शन पॉइंट एकाथरे बुझी जिवो प्रोडक्शन पूर्वरु पिले जहा खर्च हबो सब गुडाक डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन परे जहा खर्च हबो सब गुडाक इनडायरेक्ट एक्सपेंस आको भल से मन रखतबो the expenses which are incurred before the point of production are called direct expenses and the expenses which are incurred after the production are called indirect expenses ए जे को आइटम कहली पिले asset liability capital 3 direct expense और indirect expense 5 आउ दीटा रहिला direct income और रहिला indirect income direct income का कहबा an income which is earned by a business organization by selling the product with which it deals very important play important part that income का कहबा बिजनेस जो जिनस सहित डील करूची माने नियो गोटे ग्रोसरी दुकानी का सहित डील करूची ग्रोसरी आइटम को बिक्री करके जहाँ पाइबो से हबो डायरेक्ट इनकम जदि तार गोटे फैन थिला ताकू बिक्री कर दे किछि इनकम आनला सेटा केबे डायरेक्ट इनकम हबोनी से इनडायरेक्ट इनकम हे जिवो बिकॉज ग्रोसरी दुकानी का सहित डील करूची ग्रोसरी आइटम से तो फैन सहित डील करने ना तो फैन बिक्री कर दे कि जो इनकम आइला से जिवो इनडायरेक्ट इनकम माने नियो आउ जनकर फैन शोरूम अछि से का सहित डील कला फैन बिक्री कर जा इनकम करिवो डायरेक्ट इनकम किंतु ता शोरूम भितर एसी थिला एसी को बिक्री लागि थिला एसी की बिक्री कर दे कि 2 पैसा इनकम कर दला ही इज नॉट डीलिंग विथ एसी ही इज डीलिंग विथ फैन हबो तार गुड्स ताकू बिक्री करी जो इनकम पाइबो डायरेक्ट इनकम एसी जाकू बिक्री कला एसी बिक्री कर जे 2 पैसा इनकम हला इनडायरेक्ट इनकम धर आउ जनकर एसी शोरूम अछि से का सहित डील करछि एसी एयर कंडीशनर एसी की बिक्री करी जा इनकम करिवो डायरेक्ट इनकम ताकू छाड़ देला आउ जा इनकम करिवो इनडायरेक्ट इनकम ता डायरेक्ट इनकम का बुझिबा an income which is earned by the business organization by selling the product with which it deals जो प्रोडक्ट सहित से डील करूची ताकू बिक्री करके जा इनकम पाइबो डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम का कहबा जे दिन नुहे से राति जे दुख नुहे से सुख जे डायरेक्ट एक्सपेंस नुहे से इनडायरेक्ट जे डायरेक्ट इनकम नुहे से इनडायरेक्ट इनकम तो एनी इनकम अदर देन डायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम फॉर एग्जांपल बिजनेस कोटी पैसा इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट पाइला बिजनेस रे घर थला भड़ा दे दे कि रेंट पाइछि बिजनेस कोटी कमिशन पाइछि आम बिजनेस को कंपनी शेयर किन देथिला डिविडेंड पाइछि ए सब गुडाक इनडायरेक्ट इनकम एठी आ गुड टिप्स दे दोछ पले मन रखिबो सेल्स आउ क्लोजिंग स्टॉक ओनली दीज टू आइटम्स आर डायरेक्ट इनकम आकु छाडिला जहा इनकम रहइबो सब इनडायरेक्ट इनकम रहइबो तो मु तुमको केतरा आइटम पले पढेली एसेट देखो एठी तापरे लायबिलिटी then capital direct expense indirect expense direct income and indirect income या परे मु कहिथिले 7टा आइटम जार हे जिवो फाइनल अकाउंट तार हे जिवो एट देखो ए पेज टाको हमर फाइनल अकाउंट रे 3टा जिंस तयारी करथिले ना ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट 7टा आइटम पड़ेथिल ना देखो जो गुडा को डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट रे पके दबो जो गुड़ा डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट रे पके दबो एपट सेपट माइनस कर दबो आइदर तमर ग्रॉस प्रॉफिट बाहरिबो नाही तो ग्रॉस लॉस हे गेला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे डेबिट साइड रे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पके दबो क्रेडिट साइड रे इनडायरेक्ट इनकम पके दबो एपट सेपट माइनस कर दियो आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बैलेंस शीट रे लेफ्ट साइड रे एसेट पके दियो राइट साइड रे लायबिलिटी और कैपिटल देखो पहले मु केतेटा मुंडला मारिची 7टा ए 7टा आइटम कहिथिल ना नाही डायरेक्ट एक्सपेंस indirect expense direct income indirect income asset liability capital ये 7टा आइटम को रो मीनिंग मु बुझे देली तो प्रॉब्लम पड़िबो सीधा मन को पचारिबो एटा एसेट ना लायबिलिटी ना कैपिटल ना डायरेक्ट एक्सपेंस ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना डायरेक्ट इनकम ना इनडायरेक्ट इनकम सीधा सीधा 88 पके दबो फाइनल अकाउंट इज ओवर हला ये 7टा आइटम को कैप्चर करनियो तापरे किए कोठी पड़िबो मोटी देखे देछि ट्रेडिंग डेबिट रे डायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट रे डायरेक्ट इनकम पीएल अकाउंट डेबिट रे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट रे इनडायरेक्ट इनकम एटी बैलेंस शीट रे एसेट एटी लायबिलिटी एटी कैपिटल बस ए 7टा आइटम रे मीनिंग बुझी जाओ ए 7टा आइटम कोठी कोठी पडुची देखिनियो हेई गला तमरो फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट क्लास रे केबे मु प्रॉब्लम करके देखे देबी तो ये थिला आजिर क्लास मो विषय कहि दउछि पिले माई सेल्फ सरोज कुमार विश्वाल मोर जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ता ना हूँ ओब्रेन कमर्स वाला 26 ईयर हो गला मु पढ़ाऊँगी
मोर 71 स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, 65 स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट, 28 कंपनी सेक्रेटरीज, प्लस टू रे टॉपर आछंती 49, यूनिवर्सिटी टॉपर 6टा, गोल्ड मेडल 6टा। आ मोर बैंक मैनेजर देखिबो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 50। ये हला पिले मोर एसेट। तो जदि तमे चाहिबो, मोर बहुत दिन इच्छा थिला ओडिशा रे कॉमर्स छुआ पई किछि गोटे करबा। 26 वर्ष हला पढ़ेलेनी, तो एबे भाबिली ओडिशा रे कॉमर्स छुआ केमति के साहाय्य करिबि। सेति पई पिले पूरा गोटे डिजिटल स्टूडियो बनैछि, ऑफिस सेटअप हेछि। एथिरे मु जो पढ़ौछि पिले पर मंथ सबु कॉमर्स पेपर पढ़ेबी, पर मंथ 200 ओनली। आउ जी डेमो क्लास नबा को चाहिबो मात्र टंकाटे दब, 15 दिन रो डेमो नब। तापरे इच्छा हेले रेगुलर कोर्स को आसीबो। आई एम जस्ट टेकिंग 200 पर मंथ just to maintain my operating expenses. I am not here to make any business. एट मु बिजनेस पे आसने पिले कॉमर्स पिला को साहाय्य करिया पे आसी। एंड फर्स्ट टाइम इन ओडिशा आई एम स्टार्टिंग इट थ्रू ए डिजिटल सेटअप। जी चाहिबो हमर गूगल प्ले जीव, सेटी हमर अछि कोन ऐप अछि ओब्रेन बोली, डाउनलोड करिवो, रजिस्ट्रेशन कर दबो, नै त हमको डाटा फाटा सब अछि, हमको कम्युनिकेशन करो। जी चाहिबो मात्र टंकाटे देखि डेमो क्लास करू 15 दिन, तापरे रेगुलर कोर्स तळे करिवो। कॉमर्स रो सब विषय पढ़ा हबो, प्लस 2 प्लस 3, मंथली ओनली 200 हला। आ 200 टा बेसी बेनिफिट नुए पिले तम पे, ताठो आरो गोटे बड़ बेनिफिट अछि कोन एक्चुअली करिया कथा ने। मु किंतु सेवा मनोवर्ती रखिछि बोली कर दउछि। कोन करछि, आजि जहा पढेली वीडियो तम पाखु राति रे चली गला, एबे पढेली वीडियो 2-3 घंटा भितर चल जिवो। वर्ष सारा जहाँ पढ़े थी सबू वीडियो तम पाखे रही थब, जेते बेले इच्छा हला से वीडियो को जेते थर चाहिए सेते थर देखिबो। यही हला तमरो सबुटु बड़ बेनिफिट। एनीबॉडी इंटरेस्टेड कैन गो अप और कैन कॉन्टैक्ट विथ अस। थैंक यू।